Hello friends, welcome back to the class of thermodynamics. In thermodynamics till now we have read about what is thermodynamics, what are different types of thermodynamics, what is thermodynamic system, what are the different kinds of thermodynamic system, what is state, path, process, cycle. Okay, हमने थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पाथ क्या होता है, स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। तो हमने ये सब चीज़ें अभी तक पढ़ रखी थर्मोडायनामिक्स। ओके, नाउ इन टुडेस सेशन or in today's class we will see about thermodynamic equilibrium. What is thermodynamic equilibrium? This is a new concept. Okay, so let us see thermodynamic equilibrium. Okay, now what do you understand by equilibrium? What do you understand by equilibrium? Equal means something is same or similar. Okay, so what is that which is similar or same? Let us see. So first of all, equilibrium. What is equilibrium? Equilibrium is nothing but state of balance. It is starting with the word equal, equi. Equi is nothing but same, similar. Something is balanced, and equilibrium means state of balance. Now, in thermodynamic equilibrium, we will see about different kinds of equilibrium. The first kind is thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? So from the name itself, thermal means temperature or heat. So here, thermal equilibrium means equilibrium of temperature. Means when the temperature of two bodies or two systems are same. थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हम देखते हैं कि दो बॉडी का टेम्परेचर या दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम, दैट इज नथिंग बट थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी चीज को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं, वी कॉल इट एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। मीन्स over a particular span or a particular length, the temperature is varying, then we say gradient. Okay, so here in thermal equilibrium, because temperature is same, it is not changing, so there is no temperature gradient, there is no variation of temperature. temperature gradient क्या है कि temperature कोई variation है, तो temperature gradient कहते हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वहाँ को टेम्परेचर इसलिए कहते हैं देयर इज नो टेम्परेचर gradient, means there is no changing or no variation in temperature. This is first type of equilibrium under thermodynamic equilibrium. First kind is thermal equilibrium. Next, mechanical equilibrium. Mechanical means we talk about force or pressure. In for mechanical equilibrium, we talk about pressure or force. So when the pressure is same or force is same, means net pressure or net force is same. Now what do you mean by this? टोटल प्रेशर जो है या टोटल फोर्स जो है वो सेम है, अगर कोई चेंज नहीं है, ठीक, तो हम कहते हैं सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब नेट फोर्स या टोटल फोर्स का मतलब क्या हो? सपोज एक तरफ से 10 न्यूटन का पुल लग रहा है, दूसरी तरफ से 10 न्यूटन का पुश हो रहा है, ठीक, पुल और पुश एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, जो टोटल कितना हुआ +10 -10 टोटल 0। नेट फोर्स जो या टोटल फोर्स जो वो 0 होगा, ठीक। तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स जब 0 होगा सिस्टम का, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया
प्रेशर कहलाता है. Pressure is nothing but force per unit area. So if net force is zero, so we take net pressure is also zero. And as I told you, pressure gradient is zero, means variation in the pressure or variation in the force of the system is zero. There is no pressure gradient in mechanical equilibrium. Next, chemical equilibrium means when the chemical composition is constant, no reaction occurs. केमिकल कंपोजिशन किसी कंपोनेंट का अगर सेम है, जो चेंज नहीं हो रहा है या कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, चेन रिएक्शन या कोई चीज, तो हम कहेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक. तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने देखा तीन टाइप के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा जाता है: थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, तो हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम. वैसे ही जब नेट फोर्स या नेट प्रेशर जीरो होगा, मतलब जब प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा, नो प्रेशर ग्रेडियंट, देन इट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम. जब केमिकल कंपोजिशन किसी चीज का कांस्टेंट है, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है किसी चीज का, या दूसरा तरीका कहने का, नो रिएक्शन ऑकर्स, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो चीज केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक. अब एग्जांपल थर्मल इक्विलिब्रियम का. You take two beakers, one beaker you fill with hot water, another with cold water. आप दो जार लें, दो बीकर ले लें, दो ग्लास ले लें और ट्रांसपेरेंट लें. ठीक. एक में आप ठंडा पानी रख दें, एक में आप गर्म पानी रख दें. अब आप टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? हाउ यू विल मेजर द टेम्परेचर? बाय यूजिंग थर्मामीटर. You have to use the thermometer to measure the temperature. So in both the jars you insert one thermometers. In hot jar, where you, in a jar where you kept the hot water, insert one thermometer. In a jar where you kept the cold water, insert one another thermometer. Okay. आपने दो बीकर लिया है, एक में ठंडा पानी रखा है, एक में गर्म पानी रखा है, तो आप दोनों बीकर में एक टेम्परेचर इंसर्ट, थर्मोमीटर इंसर्ट कर दें. थर्मोमीटर क्यों यूज होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए. आप अपने घरों में थर्मोमीटर यूज करते हैं, या कभी आप बीमार होते हैं, बुखार आता है आपको, वेन एवर यू गेट फीवर, यू गो टू डॉक्टर, ही यूज थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर. सिमिलरली यू कैन यूज थर्मोमीटर हियर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बोथ द लिक्विड्स. ठीक. आपने मेजर किया है दोनों का, कुछ वैल्यू, कुछ टेम्परेचर आया, कुछ वैल्यूज आई. ठीक. लेट फॉर हॉट water it is 60 degree, for cold water it is 40 degree. Okay. Now आपने एग्जांपल के लिए एज्यूम कर लिया कि जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है और कोल्ड वाटर का 40 डिग्री है. ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं. दूसरा तरीका है, यू मेजर थ्रू थर्मामीटर. ओके. एंड नोट डाउन द रीडिंग. ये सिंपल एक्टिविटी है दोस्तों, आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते. अब आपने क्या किया, जो ठंडा जार, वाटर का जो जार था, उसको आपने गर्म पानी के जार के अंदर डाल दिया. उल्टा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है साइज में, डिपेंड करता है साइज में. ठीक. अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, जिसमें हॉट वाटर हमने रखा था वो जार बड़ा था. जो कोल्ड वाटर है, नीला कलर का जो है वो कोल्ड वाटर है, और जो मेहरून कलर का या ब्राउन कलर का है वो आपका हॉट वाटर है. ठीक. तो जो नीला वाला है वो ठंडा वाला, वो छोटा डायमीटर का है, वो ब्राउन वाले के अंदर आ सकता है. ओके. तो आपने छोटे वाले को बड़े वाले जार के अंदर रख दिया. अब क्या होगा, एक ठंडा है और एक गर्म है. What we have done here in this activity,
we have kept a small jar inside one bigger jar. Okay, and what will happen? The fluid or the water which is hot, it will lose the heat, so its temperature will decrease. Similarly, the small beaker having cold water, what will happen? It will gain the heat from the hot water. So what will happen? Its temperature will rise. सीधी सी बात है, एक चीज हीट को लूज कर रहा है, दूसरा हीट को गेन कर रहा है। लूज कौन करेगा, गेन कौन करेगा? जो गर्म चीज है वो लूज करेगी हीट को, और जो ठंडी चीज है वो हीट को गेन करेगी। ओके, तब क्या होता है? आपने कुछ देर के लिए बीकर को एज इट इज रख दिया। We have kept the system of this beaker and thermometer for some time. Okay, what will happen after some time? Let it the 5 minutes. It depends on the temperature and surrounding condition. Suppose in 5 minutes both the liquid attain 50 degree Celsius. हमने रीडिंग ली, नोट किया वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आया वो कि 5 मिनट के बाद दोनों का टेम्परेचर बराबर आ गया। सपोज इट इज भी 50 डिग्री। नाउ initially hot water was 60 degree, cold was 40. After some time they both came to one similar temperature, equal temperature. It is 50 degree. Okay, you have to note down the time and the temperature. Okay, after how much time both water get same temperature? Okay, so note down the same temperature, equal temperature, and the time taken to attain that temperature. Okay, so this is nothing but thermal equilibrium. Means आपका दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम आ गया, यही चीज है थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। Now taking another example here, taking a hot cup of tea or hot cup of coffee. Okay, now keep it in atmosphere. So what will happen? Temperature of hot cup of tea or coffee is more than the surrounding temperature. After some time what will happen? The heat of hot tea or hot cup of coffee will lose. So its temperature will decrease and it will try to attain the temperature of surrounding. आप अगर एक हॉट कप ऑफ टी या हॉट कप ऑफ कॉफी को आपने रख दिया है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? आप देखेंगे जो हॉट टी है या हॉट कॉफी है वो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर लूज होगा। कितना हो जाएगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। ठीक, वैसे एक और एग्जांपल आपने लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया आपने, तो कोल्ड है वो, उसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक क्या होगी? धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। यू हैव टेकन a glass of cold drink, okay, and kept in the atmosphere. So what will happen? The temperature of atmosphere is more than the temperature of cold drink. So cold drink will start getting hot. Its temperature will try to increase up to how much? Up to the temperature of surrounding. Okay, and then it will attain the equilibrium with the temperature of surrounding. This is nothing but thermal equilibrium. यही थर्मल इक्विलिब्रियम है दोस्तों। ठीक, तो इसी चीज को हम वर्ड्स में कहेंगे, when a body is brought in contact with another body at different temperature। मतलब जब आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, जो दोनों बॉडी अलग अलग टेम्परेचर की है, देन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू डेट विथ लोअर वन। मतलब क्या हो रहा है उस केस में? जो गर्म बॉडी है या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वहां से हीट ट्रांसफर हुई किसको? उस बॉडी को जिसका टेम्परेचर लो है।
कब तक होगी? टिल बोथ द बॉडी अटेन a same temperature and it that state is nothing but thermal equilibrium. ये कब तक होगा दोस्तों? जब तक दोनों बॉडी एक सेम टेम्परेचर को गेन ना कर ले, उसी स्टेट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. दैट स्टेट इज नथिंग बट थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी बिकम इक्वल और सेम. ओके, तो ये हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम. थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी. ठीक, हम मिलेंगे अगली बार अगले सेशन में थर्मोडायनामिक्स के. So friends, we will meet you in the next section of thermodynamics very soon. Till then, goodbye and take care.